Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain a chapter in class 12 and the name of this chapter is Parties and the Party System in India. Class, in this chapter we are discussing after the independence, India was got the challenge of establish a democracy. Okay, you already know after the independence, India got the three types of the challenges. First, to establish, to shape a nation, to establish democracy, and the problems of economic development and well-being of the entire society, not only for some but also for the disadvantaged and vulnerable groups. Okay, so today we are going to discuss about the second type of the problem. Second problem, second type of the problem is to establish a democracy. Class, after the independence, India was decided to path of democracy. Well, in the 1950s and 16s era, in most of the country from Asia and Africa, they were got the independence from the European colonial master, and most of the nations were choosing the path of one party rule. Yeah, the country is controlled by one leader, or so many countries adopted a military rule, or many times as a dictatorial. But these governments were starting their work, and these governments were promises to the people ki in further they provide them a democratic government. But after 10 years or 20 years, they were forget their promises and continue they rule as a one party system, yeah, ruling by one leader or military ruling. Okay, but India was choosing a different path. India was taking the bold step, and India was decided to go in a democratic path, and after 15 August 1947, interim government was set up according to plan proposed by cabinet mission, and according to plan of cabinet mission, a constituent assembly was set up, which was going to make the constitution of India. They take 2 years, 11 months and 18 days, and by that 26 November 1949 the constitution was ready. But only on 24 January, the member of Constituent Assembly was going to sign this, and after this 26 January 1950, when 24 January 1950 the Constituent Assembly was signed the paper of Constitution, then on 26 January 1950 the Constitution was come into effect, and we are accepted this. Okay class, and 26 January 1950 it was fully adopted by our country. And according to but when the making of the constitution was over, now the according to constitution there is a election commission in our country, and their responsibility to take this election to organize the election.
That is why when the making of Indian Constitution was complete, according to Article 324, Indian Constitution was arranged election commissioner for the superintendence, control and conducting of the electoral role in India. So according to Article 324, Election Commission is here. So in January 1950, Election Commission was set up for India, and the task of election was started by Election Commission, and first Chief Election Commissioner was Shiv Kumar Sen, and he take so many time to start the first general election, because this was a very challenging task for this big diverse country, because first of all the task is to divide this vast country in the different electoral constituencies, then after prepare the voter list, and in this voter list 17 crore voters are come into exist after the when the voter list was going to made, and they feel some problem कि women were written their name as a daughter of या wife of such type of their name, and when the work of election was start, this take more time, like election was start in October 1951 and it was complete on February 1952. So more than 6 months was taking this first general election, and first of all general election was reject the voter list where the women were not giving their name. So election commission was try to again making the voter list where the women give their name, and जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था वो nearly 85% पीपल्स आर इलिटरेट एंड मोस्ट द पीपल्स आर पुअर, बहुत सारे लोग गरीब थे, इलिटरेट थे. तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक वेस्ट की जो थी दे वर सेइंग कि डेमोक्रेसी केवल जो प्रॉस्परस कंट्री है, इकोनॉमिकली रिच कंट्री हैं वहीं अच्छा होता है, एंड डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड फॉर द पुअर कंट्री लाइक इंडिया. पुअर एंड इलिटरेट कंट्री लाइक इंडिया के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में मोर देन 85% पॉपुलेशन आर इलिटरेट. तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है. तो but our leaders were taking this challenge, and we successful organized the first general election. जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था 489 सीटों के लिए हो रहा था, जिसमें कांग्रेस ने, और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसके साथ साथ लोकसभा के साथ साथ राज्यों की स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन हो रहे थे. मोर देन 3200 MLAs will going to elect and 489 MPs की सीटों के लिए चुनाव हो रहा था. मोर देन 17 करोड़ वोटर्स आर इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट, और काफ़ी 6 महीने का समय लग गया. जो कंपेनिंग है, पोलिंग है, काउंटिंग में 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा. जो प्लस फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो मेथड यूज़ किए गए थे उसमें देखो स्टील के बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए, क्योंकि पीपल जो है इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी. तो बाकायदा हर कैंडिडेट के लिए एक स्टील का बॉक्स तैयार किया गया, जिसमें कैंडिडेट के नेम, उसके पार्टी का सिंबल, और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू और उसके रीजनल लैंग्वेज में चीज़ें डिटेल लिखा रहता था कि जो, और सिंबल या कलर बना रहता था, जिससे कि इलिटरेट पीपल्स
को कोई दिक्कत ना हो, कम से कम प्रॉब्लम हो वोटिंग करने में। और लगभग 20 लाख से ज़्यादा स्टील के बक्से बनाए गए और हर पोलिंग बूथ पर हर कैंडिडेट के नाम से जो है एक बॉक्स रखा होता था, जहाँ पर जो वोटर जाता तो एक ब्लैंक जो आपका बैलेट पेपर मिलता उसको आपको फोल्ड करके अपने पसंद के कैंडिडेट के उस बक्से में डाल देना होता। तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसको कराना, दिस वाज अ वेरी टफ वर्क, बट इलेक्शन कमीशन ने ये काम लास्टली कंप्लीट किया। और इस तरह से इलेक्शन हमारे यहाँ फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 364 सीटें मिली, सोशलिस्ट पार्टी को भी 10 सीटें मिली, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री जीते, जनसंघ को 3 सीटें मिली। इस तरह CPI को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीटें मिली, मजदूर किसान प्रजा पार्टी को 9 और गणतंत्र परिषद को 6। इस तरह से जो मल्टी पार्टी इलेक्शन हुए और कांग्रेस जो एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई। एंड इसी तरह से सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में भी ऐसे ही नतीजे आए कि सेकंड जनरल इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 494 में से 371 सीटें जीती, एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 494 में से 361 सीटें मिली। तो फर्स्ट इलेक्शन का रिजल्ट 364 आउट ऑफ 489 में से 364 सीटें फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, एंड सेकंड जनरल इलेक्शन में 494 से में से आपके 371 सीटें कांग्रेस के पास आई। और इसी तरह से थर्ड जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 494 में से 361 सीटें मिली। तो कांग्रेस लगातार 3 इलेक्शन में एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में निकल कर के आया। देखो क्लास, देयर वाज अनदर, उस समय और भी पार्टीज़ थी जो दे वेर वर्किंग एज अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन पार्टी class, this is a Indian National Congress, and here I am deciding to show the how the Congress was split. The Indian National Congress, initially it was working as a coalition party. You are looking in the Indian National Congress, the Congress Socialist Party and Congress Democratic Front both are working within the Congress. But after some time, the Socialist Party, which are come from the Indian National Congress and Kisan Mazdoor Praja Party, which are also come from the Indian National Congress, and both are joined. Socialist Party and Kisan Mazdoor Praja Party both are joined and make Praja
Socialist Party. And again, this Praja Socialist Party was divided into Socialist Party and Praja Socialist Party, and ultimately both are submerged and make a Samyukta Socialist Party. And again, the Indian National Congress is also distributed between Kerala Congress, Ganatantra Congress, and Bharatiya Kranti Dal. We are looking कि so many parties are come from the Indian National Congress, like Indian Socialist Party, Kisan Mazdoor Praja Party, Kerala Congress, Ganatantra Congress, and Bharatiya Kranti Dal. They are splitting from the Congress, and again this Socialist Party and Kisan Mazdoor Praja Party are joined and make Praja Socialist Party. Praja Socialist Party again split into Praja Socialist Party and Praja Socialist Party. Praja Socialist Party is divided into Praja Socialist Party and Socialist Party, and again both are merged and make the Samyukta Socialist Party. And you are looking ki Bharatiya Kranti Dal, which are come from the Congress, and these are the some information. Class, so we are discussing about ki what are the class there is a question कि why ये जो सिस्टम था कांग्रेस की फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में डोमिनेंस कंडीशन में है, तो व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रीजन इज दैट कि कांग्रेस गॉट द बेनिफिट ऑफ लेजेंसी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट. तो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, तो इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो हमारे पूरे इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में फैली हुई थी, और इसका जो कांटेक्ट है लोकल लेवल पे था, ठीक है. एंड दिस पार्टी वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी. बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के बैनर तले आज़ादी की लड़ाई लड़े, नाउ आफ्टर दैट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, तो वो जो बड़े बड़े नेता थे लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए गए, जो कि कांग्रेस के ही थे. तो दैट इज़ वाई पीपल्स एक्सेप्ट देयर कैंडिडेचर, जो मतलब उनको एज ए मंत्री, एज ए अपना एमपी पाने में लोगों को बहुत ही खुशी हुई. दे गॉट देयर वोट. ऐसे कांग्रेस के नेताओं को लोगों ने वोट दिया. एंड नाउ कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई, और कांग्रेस दैट इज़ वाई दे गॉट द बेनिफिट ऑफ लेजेंसी ऑफ नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट्स के जो फ़ायदे थे वो कांग्रेस को मिले, और कांग्रेस इतने बड़े वोट से जीती. फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को इतने वोट मिले क्योंकि ये वही नेता जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू was a big लीडर. महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी उनको बनाया, पंडित नेहरू को. एंड महात्मा गांधी के फॉलोअर थे पंडित नेहरू, उनके साथ रह करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और अपना उत्तराधिकारी उन्होंने पंडित नेहरू को ही चुना. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो नेहरू की जो छवि थी हमारे इंडिया में, वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आई, और उनके आसपास उनके जैसा व्यक्तित्व तो कोई नहीं था. नाउ
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अब लोगों के बीच में वोट मांग रहे थे कांग्रेस का के तरफ से। दैट इज़ वाई पीपल एक्सेप्ट हिम, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, लोगों का भरोसा उनको मिला। तो फर्स्ट थिंग तो ये थी कि कांग्रेस की स्थिति डोमिनेंस हुई। सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ क्या थी कि क्लास की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कारण भी कांग्रेस को बेनिफिट मिला, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में भाई जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस के पास ओनली 45% वोट थे, बट दे गॉट द 74% सीट। ऐसा कमी कहाँ से है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की कांग्रेस 45% वोट पाते हुए भी उसकी स्थिति ऐसी है कि वो 74% सीटें गॉट कर लेती है, और वहीं सोशलिस्ट पार्टी जो 10% वोट पाई है लेकिन उसको केवल 3 सीटें ही मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पास दो सिस्टम की ड्रॉबैक्स थी उसका भी ये रिज़ल्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थिति डोमिनेंट हो गई। और तीसरी जो थर्ड इशू था वो ये था क्लास की जितने भी नॉन कांग्रेस वोट थे, जैसे कांग्रेस के पास 45% वोट थे, तो 55% 54% जो नॉन कांग्रेस वोट थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट बिखरे हुए थे। उनमें कहीं भी अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी या एकता नहीं दिखी जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। कहीं भी वो आपस में एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश नहीं की हुए, वो सब कांग्रेस के अगेंस्ट थे, कांग्रेस से सीधे उनकी फाइटिंग थी, और यही वजह है कि उसका एडवांटेज कांग्रेस को मिला और कांग्रेस को इतनी डोमिनेंस सिचुएशन प्राप्त हुई क्लास। नाउ देयर आर सम अदर इश्यूज़ कि भाई जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने जो डोमिनेंट पोजीशन हासिल की वो कैसे जो है, जैसे चाइना, सीरिया, क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की रूलिंग है तो उनका वहाँ पे डोमिनेंट है, तो उनके उस डोमिनेंस से और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डोमिनेंट पोजीशन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखो क्लास, सीरिया, चाइना और क्यूबा में जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दे अलाउ ओनली वन पार्टी, वो केवल एक ही पार्टी को अलाउ करते हैं और पीपल्स के पास ऑप्शन नहीं है। दैट इज़ वाई सारे वोट कम्युनिस्ट पार्टी को ही चले जाते हैं। दैट इज़ वाई द कम्युनिस्ट पार्टी इन दीज कंट्री, इन चाइना, सीरिया एंड क्यूबा वॉज डोमिनेंट। बट हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं और सब जनता के पास ऑप्शन है, फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन लड़ने के बाद भी डोमिनेंट स्थिति इसलिए हासिल कर पाई बिकॉज दे गॉट द बेनिफिट ऑफ लेजेंसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। जैसे कि अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ऐसी बेनिफिट मिला, वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बेनिफिट मिला कि आज़ादी की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लड़ी थी, लोगों ने उसको चुना एज ए रूलिंग पार्टी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी उसका नेचर अलग था, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया था और मल्टी पार्टी सिस्टम इलेक्शन हुए, लोगों की पसंद थी वो पार्टी, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था, लोगों ने सपोर्ट किया था। जबकि अदर्स कंट्रीज़ में अगर किसी वन पार्टी का डोमिनेंस है तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही पार्टी अलाउ है, या वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल या मिलिट्री मेजर्स हैं जिसकी वजह से किसी एक ही पार्टी को सपोर्ट मिलता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की डोमिनेंस से वो अलग है। और हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें हर तरह के लोग उसके मेंबर हुआ करते थे, ऑल इंक्लूसिव, वो सबको साथ